Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about an unexpected message coming for you. इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. अभी आ रहा है आपके सामने screenshot. तो जैसे screenshot पर we see 3 pictures and yes we have the snake. We have a snake this time and I know that many of you may not like it, but I like snakes. For some reason I like snakes. हाँ, अगर मेरे को इसके साथ छोड़ दो तो शायद मुझे फिर of course डर लगेगा, but I feel that snakes are nice beings. So let's get started. ये जो screenshot है, जो pile 1 होगी, it is going to be of the bird. If you get attracted to the bird, choose pile number 1. If you are like me who likes snakes or in general अभी जो है snake की आपको picture अच्छी लग रही है तो आपने pile number 2 को pick करना है. And if you are someone who like fishes or in general जैसे अभी you are attracted to the fish, then choose the pile number 3. ऑलराइट, सो जो भी पिक्चर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो भी कलर आपको इन पिक्चर्स का अट्रैक्ट करता है, वो वाला पिक्चर आप, वो वाली पाइल आप पिक करो एंड दैट इज़ गोना बी योर रीडिंग, दैट इज़ गोना बी योर पाइल. ऑलराइट, आप अपने लिए राइट पाइल ही पिक करोगे. सो हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ ऑन योर सेल्फ. ऑलराइट, कि आप राइट पाइल ही पिक करोगे. सो इस स्क्रीन शॉट को हम 30 सेकेंड्स के लिए और एक्सटेंड करते हैं और आप अपना पाइल, अपनी पिक्चर डिसाइड करो. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो और अपनी रीडिंग सुनो, देखो. सो या अभी ये 30 सेकेंड के लिए और ये स्क्रीनशॉट एक्सटेंड करते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the bird. Let's get started with your reading. तो हम पहले तो इस ओशो डेक से कुछ कार्ड्स पुल आउट करेंगे and then we'll move to the main tarot. Pile number 1. What's the message coming for pile number 1? It is going to be unexpected. Message for pile 1. Okay. We have the patience card here. All right. And then we have 2 more cards. We have nothingness. And then we have silence. I don't know, like I feel with this reading itself कि ना जैसे reading बड़ी mystical होने वाली और बहुत deep जाने वाली है. I feel this way. Especially if I'm using the Osho deck here. It always gives some deep insights about your life. Whenever I've used this deck, it always gives some deep insights. So yeah, let's get started with the tarot. Pile number 1. What's the message here for pile number 1? Which they are not expecting. I have the 10 of Wands. Okay. Then we have the Chariot. Okay. End of the deck we have 9 of Wands. Okay. So what I see here for you, pile 1, the message here coming is that a lot is about to happen, a lot is about to be built in your life. And you need to keep calm, you need to be more patient. And you need to dig in
Like literally you have to dig in, not outside. जो अनएक्सपेक्टेड मैसेज है वो यही है कि यहाँ पर आप कोई नई चीज़ या अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हो. फ्रॉम रैग्स टू रिचेस आप जा रहे हो. फ्रॉम नथिंगनेस टू लॉट ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग. एंड 10 of Wands here shows कि आपने अपना पुराना सेल्फ को पैकअप कर दिया है. You're like, I'm done with my old life, I'm done with my old self. Now I want to begin something new. And you should read good books, pile one. Because that will build your personality. अभी जैसे nothingness का ही first, actually patience का कार्ड है, फिर nothingness, silence का कार्ड है. तो the thing is that you need this emptiness within. शायद अभी आप empty महसूस कर रहे हो. You don't have a lot of clarity about life. There is this darkness, and you need to read certain spiritual or maybe career regarding books, because that is going to give you a lot of insight. And the patience card shows that you need to be a bit more patient, a bit more calm to see things clearly. क्योंकि कुछ ऐसी negative situations हैं अभी जिसमें कुछ positive ज़रूर है, but उस positive को देखने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए और बहुत सूक्ष्म चाहिए. यानी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत पॉजिटिव है उस नेगेटिव सिचुएशन में. बट टू सी दोज पॉजिटिव थिंग्स you need to be more calm and more composed. Right now maybe the life is chaotic and you don't know कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. You don't have that clarity. And जितना आप साइलेंस में रहते हो उतना क्लैरिटी जो है आती जाएगी. बट साइलेंस डज नॉट मीन कि यू स्टॉप एवरीथिंग. रीडिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट और लिसनिंग टू गुड थिंग्स बिकम्स इम्पॉर्टेंट. द स्पिरिट सेज कि अकेले बैठकर साइलेंस में बैठकर यू शुड रीड और यू शुड लिसन टू समथिंग विच इज़ आइदर स्पिरिचुअल इन नेचर और इट्स कंप्लीटली करियर रिगार्डिंग. वो लाइक देयर आर सर्टन बुक्स जैसे रिच डैड पुअर डैड समथिंग कुछ ऐसा बुक है. मे बी आई एम सेइंग इट रॉन्ग बट कुछ ऐसा बुक है अबाउट करियर ओनली. सो मे बी you should read that book. And the 10 of Wands here shows that it's a time to pack up. It's a time to move on from your old self, move on from things now. Old self, tata goodbye, and you have to create a new version of yourself. और कुछ ऐसा समय भी है जहाँ पर आप अपना न्यू वर्जन क्रिएट कर पाओगे. आई डू फील दैट यू कैन हैव अ प्रोमिनेंट स्कॉर्पियो साइन, मीनिंग प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे स्कॉर्पियो साइन में. 8th हाउस में प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन योर बर्थ चार्ट. विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा नक्षत्रास में प्लैनेट, इन 3 नक्षत्रास में प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. इन 3 में से किसी एक नक्षत्र में प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. द चैरिट हेयर शोज दैट लाइफ is gonna become extremely busy in the future in a good way. आप अपने फ्यूचर को भी बिल्ड कर रहे हो. The spirit says to build a good future you need a lot of wisdom. You need to be wise enough to choose the right path. And the chariot also shows कि एक आपके पास आप एक क्रॉस रोड पर आओगे जहाँ पर आपको एक पाथ पिक करना पड़ेगा और वो पाथ आप अपने लिए सही तब पिक कर पाओगे when you have wisdom inside you, when you are wise enough. So make yourself ready to choose the right path. And how you make yourself ready is through wisdom, it's through knowledge, it's through reading something. और पेशेंस होनी चाहिए आपके अंदर, ये मेजर मैसेज है. Of course the patience and this pregnant woman does show that if you want to have children, then yes, a time of fertility is coming for you. And your pregnancy is going to be quite peaceful. That we also see. And the more you are in silence, जितना आप शांति में रहते हो, जितना इनफैक्ट आप अकेले रहते हो, लोगों के साथ नहीं अकेले रहते हो, उतना आपके लिए समय पीसफुल होगा. लाइक इफ़ यू आर प्रेगनेंट और नॉट, बट जितना आप अकेले रहते हो, जितना आप शांति में रहते हो, उतना टाइम पीसफुल होगा, उतना समय आपको अच्छा अपना महसूस होगा.
But the more you are with people, the more you may feel the more you feel exhausted. तो जो 9 of Wands का भी कार्ड है एंड ऑफ द डेक में, ये आपकी सबकॉन्शियस को शो करता है, या आपके बिल्कुल एक इंटरनल थिंकिंग को शो करता है. The 9 of Wands does show that you have this desire of fame. You have the desire कि लोग मुझे फॉलो करें, लोग मुझे देखें, लोग मुझे मेरे काम का क्रेडिट मिले, मेरा भी नाम हो, मेरा भी रिस्पेक्ट रिगार्ड हो सोसाइटी में. ये चाहत ज़रूर है. बट 9 of Wands ये शो कर रहा है दैट यू आर टू इन्वॉल्व्ड इन अदर पीपल एंड अदर पीपल्स लाइफ. मे बी यू आर वॉचिंग अ लॉट ऑफ व्लॉग्स ऑन यूट्यूब ऑफ अदर पीपल. दूसरे लोगों की बहुत सारी आप वीडियोज़ देख रहे हो, व्लॉग्स देख रहे हो, उनकी लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर कर सकते हो, या उनकी लाइफ को देख रहे हो इन जनरल. तो यू शुड स्टॉप डूइंग इट. इज़ अ टाइम टू बिल्ड योर सेल्फ. इज़ अ टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ. So this is, a major message. And 10 of Wands में भी we see that this person is holding many boxes. और ये boxes जो है fragile है, क्योंकि we see यहाँ पर जो है we have candles, we have the diyas. Here as well we have the candles, we have the diyas, right? तो here as well the boxes are fragile. जो इसके अंदर चीज़ है वो fragile है, वो टूट सकती है, राइट? जो दिया होता है वो कितनी जल्दी टूट सकता है, मिट्टी का बना होता है. तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपने अपने दिल से लगाई हुई है, बट इट्स अ टाइम टू लीव दोज थिंग्स. वो भी जो आपने अंदर ही अंदर अपने चीज़ें रखी हुई थी ना, जो स्टोर रूम में हम चीज़ें रखते हैं, जो हर रोज़ यूज़ नहीं होती, पर हमने उसको फिर भी रखा हुआ है. उसी तरह हमारे मन में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम रोज़ उसके बारे में नहीं सोचते, पर वो रहती है हमारे मन में. तो उसको लेट गो करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. स्पेस बनाने की ज़रूरत है अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में स्पेस बनाने की ज़रूरत है. अगर गुरु भी अच्छा हो, पर उसकी नॉलेज हमारी अंदर तब तक नहीं जाएगी जब तक हम अपना खाली नहीं करेंगे दिमाग. गुरु भी ये कहता है तुम पहले ये जो तुमने कचरा भरा हुआ है अपने दिमाग में, इसको खाली करके आओ, तब मैं तुम्हारे अंदर कुछ बढ़िया बात भरूँ. इज़ इट टाइम टू let go of your old schedules, your old routines, because it's the time to rebuild yourself. You can also run the 8th house dasha in your life, pile number 1. Like आप स्कॉर्पियो अंतरदशा, स्कॉर्पियो महादशा, चरा दशा में रन कर रहे हो, या फिर विमशोत्री दशा में जो 8th हाउस में प्लैनेट प्लेस्ड है उसकी दशा रन करो. लेट्स से आपका मून 8th हाउस में प्लेस्ड है, तो आप मून की अंतरदशा महादशा रन करो विमशोत्री दशा में. लेट्स से अगर आपका लियो साइन जो 8th हाउस में पड़ रहा है, तो लियो की दशा आप रन कर, सन की दशा आप रन करो इन द विमशोत्री टाइम पीरियड. सो इट्स अ टाइम, ये शो करता है आप 8th हाउस की दशा रन कर सकते हो इस समय पर, विच शोज दैट you are running a time of change, transformation, change for betterment. So ये आपके लिए information है, ये आपके लिए message है. This is the time to let go of old things, old schedules, old ways. Stop using so much of social media. Stop watching so much of content, क्योंकि hodgepodge हो चुका है, and it's time to go towards nothingness. क्योंकि जब वो nothingness आती है तो आपके अंदर जो है विजडम राइज करते हैं. जो पास्ट लाइफ की विजडम है ना, वो भी आप फिर से टैप इन कर पाते हो उसमें, और उस विजडम को यूज़ कर पाते हो. सो ये आपके लिए जो है अनएक्सपेक्टेड मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 1. लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स. पाइल नंबर 1. All right. We have the bully card. It says highlights your tendency to intimidate others, helps you confront the inner fears that bully you. Told you, like there are certain things जो आपकी कुछ weaknesses या कुछ ऐसे past experiences जो आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते. ऐसे कोई कई हम सभी के साथ पास्ट में ऐसा हुआ होता है जहाँ पर हमें बड़ी एम्बैरेसमेंट फील हुई हो सकती है किसी सिचुएशन में, और वैसी सिचुएशन जो है अब हमें फेस करनी है. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू वर एट द स्टेज, और वहाँ पर जो आपको एक्ट करना था वो एक्ट नहीं कर पाए. यू फेल्ट दैट
you did what you were supposed to do and you felt embarrassed because of that. आपको बड़ा embarrassment हो, अब फिर से स्टेज पे जाने की बारी है, बट यू आर लाइक कि पहले जैसा ना हो जाए, मेरी फिर embarrassment ना हो जाए. सो वो जो मेमोरी है ना वो आपको बुली कर रही है. सो देर इज सम मेमोरी इन यू विच बुलीज यू टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, टू डू योर बेस्ट इन लाइफ. सो उस चीज़ को आपको अपने से बाहर निकालने की ज़रूरत है, उस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है, उस मेमोरी को लेट गो करने की ज़रूरत है. एंड विद द बुली कार्ड है, यस, ये भी शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके आइडियाज़ को, आपके काम को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं वो लोग आपके बोलने के तरीके का, आपके चलने के तरीके का, आपके जो भी आप काम करते हो, दे डज द क्रिटिकल एनालिसिस. एंड आई सी दैट योर बॉसेस कैन बी क्वाइट कट थ्रोट, क्वाइट detail oriented, but especially they are cutthroat. Maybe your professors, your teachers are very cutthroat in nature. तो वो कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिसमें आपको बेइज्जती फील होने शुरू हो जाती है. सो देर इज समवन इन योर लाइफ जो कि अथॉरिटी रखता है आप पर, एंड वो पर्सन बहुत क्रिटिकल एनालिसिस करता है आपका और आपका मजाक उड़ाता है. देर इज सम बुली इन योर लाइफ फॉर श्योर. गुड पार्ट इज कि इस बुली से आपका छुटकारा हो रहा है. गुड पार्ट यही है कि इस बुली से आपका छुटकारा हो रहा है. समहाउ आप इस पर्सन की बातों का बुरा मानना छोड़ देते हैं, पर्सन सच में आपकी लाइफ से ही चला जाता है. ये यहाँ पर शो हो रहा है. आप कहीं ना कहीं बदलते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो, और जब हम बदलते हैं तो दुनिया बदली बदली महसूस होती है. तो समहाउ ये पर्सन आपको अब अफेक्ट नहीं कर रहा, उनका आपकी लाइफ से इफेक्ट गया. Then we have the warrior. You seem to be that warrior. स्पेशली कार्ड में यहाँ पे रखने वाली थी, और यहाँ पर हमें क्लाउड्स दिख रहे हैं और यहाँ पर हमें वो इंद्रा टाइप वज्रा दिख रहा है, थंडर स्टॉर्म, थंडर बोल्ट. ऑल राइट, सो हियर आई डू सी दैट अगर कोई आपको बुली करता है, अगर कोई आपसे बुरी तरीके से बिहेव करता है, यू आर ऑल्सो नॉन एज, यू आर ऑल्सो बीइंग अ वॉरियर एंड फाइटिंग दिस पर्सन अवे फ्रॉम योर लाइफ, एंड यू आर एबल टू डू इट. वॉरियर कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं स्ट्रेंथ, स्किल, डिसिप्लिन एंड टफनेस ऑफ विल, हेरोइज्म, सेल्फ सेक्रीफाइस इन कॉन्करिंग द ईगो. सो again you can have Mars as your Atma Karka pile number 1, like Mars is holding the highest degree in your chart, is becoming your Atma Karka, it is representing you. या फिर जो आपका Mars जो आपका Atma Karka है वो Aries या Scorpio साइन में placed हो, that can happen here. एंड यू कैन अगेन हैव कृतिका और विशाखा नक्षत्र में प्लैनेट ज़रूर प्लेस होंगे. विशाखा कृतिका जो है जैसे विशाखा लीब्रा में भी होता है और स्कॉर्पियो में स्पिल करता है, और कृतिका नक्षत्र एरीज में भी होता है और टॉरस में स्पिल करता है. तो इन साइंस, इन नक्षत्र में आपके प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. आपका 10th या 11th लॉर्ड कृतिका या फिर विशाखा नक्षत्र में प्लेस हो सकता है, जो कि डेफिनेटली शो करता है कि आपका जो वर्क है वो क्रिटिकल एनालिसिस से रिलेटेड हो सकता है. यू कैन बी एन एनालिस्ट, यू कैन इवन बी अ शेफ, और योर bosses, your co-workers are very cutthroat people. They can be very direct and straightforward in their communication, which at time can hurt you. But यहाँ पर जो warrior card है वो ये शो है कि आपका जो एक soldier ability है, warrior ability है, warrior kind of ability है, वो आप unlock कर रहे हो. जो वो शांत रहने का समय है वो आप अच्छे से बिता लेते हो. जैसे वो जो अकेले रहने का समय है वो आप बहुत अच्छे से बिता लेते हो. यू आर अ पर्सन पाइल 1 जो अगर कोई आपको तंग करेगा तो आप उसको छोड़ोगे नहीं अब, और जब आप अकेले बैठे तो आप आराम से बैठे हो. इनफैक्ट यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है दैट यू शुड बी अलोन फॉर सम टाइम. यू शुड कीप योर सेल्फ अ बिट मोर आइसोलेटेड फॉर सम टाइम, क्योंकि जितना आप लोगों के साथ रहते हो कहीं ना कहीं आपसे उनके लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, आप और उनके लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें जिस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और वो लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, हेंस वो लड़ाई झगड़ा होता है. बट द वॉरियर हेयर शोज़ कि आप ओवर पावर कर लेते हो अपने बुलीज़ को, अब आप ओवर पावर कर लेते हो अपने कंपेटिटर्स को अब, क्योंकि आपके अंदर पावर ऑफ साइलेंस आ जाता है.
वी हैव द साइलेंस कार्ड, वी हैव द नथिंगनेस कार्ड, वी हैव द पेशेंस कार्ड. कि भाई अब पेशेंस जो है उसकी पावर होती है, साइलेंस की पावर होती है. उस पावर से आप जो जीत पा लेते हो अपने एनिमीज़ पर, अपने बुलीज पर. बट या अगर कोई अननेसेसरी आपको तंग करे तो यू बिकम अ वॉरियर एंड यू विन ओवर दैम. यू डोंट नेगोशिएट, आप उन पर विन कर लेते हो, विक्ट्री पा लेते हो. कई बार बातों ही बातों में, जैसे कोई आपको बातों ही बातों में बुरा भला कह रहा है तो आप उसी की भाषा में उसको बात समझा देते हो और वो पर्सन उधर ही चुप हो जाता है, कट हो जाता है आपकी लाइफ से. मूवमेंट का कार्ड है यहाँ पर. सो हियर एज वेल वी सी अ मूवमेंट, वी सी मूवमेंट हियर एज वेल, वी सी द मूवमेंट हियर. और चैरियट भी फॉरवर्ड मूवमेंट को, चढ़ती कला को शो करता है. यहाँ पर भी विद द पेशेंस कार्ड वी हैव अ प्रेग्नेंट लेडी विच शोज ग्रोथ, फर्टिलिटी. अगेन अ लाइफ इज ग्रोइंग. मूवमेंट तो है यहाँ पर. जो अगर आपको लगता है ना मेरी लाइफ चल नहीं रही आगे, फॉरवर्ड मूव नहीं कर रही है, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा नहीं होता है, द आंसर टू यू और द मैसेज फॉर यू इज़ द लाइफ इज़ मूविंग फॉरवर्ड. It is moving forward, that too in a good direction, in a good way. प्लस आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जो बड़ी अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपको लगे कि ये कभी हो नहीं सकता, ये शायद 10 साल बाद हो. ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को 10 साल बाद मिले, अभी कहाँ से मिल सकती है, बट गेस व्हाट, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी. ये जो मूवमेंट कार्ड है, इट सीम्स लाइक, इट लुक्स लाइक द 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि शो करता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आना और काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाना उन अपॉर्चुनिटीज़ में, क्योंकि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ना नहीं कह सकते. आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब ही करोगे और अगेन लाइफ बिकम्स बिजी. जैसे चैरियट भी शो कर रहा है, लाइफ बिकम्स बिजी, क्योंकि आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर रहे हो जिससे लाइफ ऑफ कोर्स बिजी हो जाती है, प्लस आपका मन लगता है अपने काम में. सो ये आपके लिए जो है अनएक्सपेक्टेड मैसेज आ रहे हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव, okay, we have 2 cards here. We have privileged lady, we have occupation. So आप अपने occupation में बहुत ज़्यादा busy होने वाले हो, ये नज़र आ रहा है. Again, what is an occupation? An occupation is a job that a person does to earn money, right? तो ये जो occupation है, इस occupation में आप अपने काम में आप again late night work कर रहे हो और बहुत डिटेल ओरिएंटेड होकर वर्क कर रहे हो. जैसे हम विशाखा या कृतिका नक्षत्र की बात कर रहे थे कि आपका 10th लॉर्ड या आपका 11th लॉर्ड कृतिका नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र में प्लेस हो सकते हैं. कृतिका और विशाखा नक्षत्र आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. वो एनालिसिस को शो करते हैं, छोटी छोटी बातों को निटपिक करना उसको शो करते हैं, डिटेल ओरिएंटेशन को शो करता है, कट पेस्ट कॉपी पेस्ट ऐसा इस काम को शो करते हैं. बहुत डिटेल से जो काम करना होता है, चाहे बीइंग अ शेफ़, you have to be precise about what kind of masalas you add in the food. So यहाँ पर भी occupation में भी सी कि ये person जो है सिलाई का काम कर रहा है और बड़ा डिटेल ओरिएंटेड होकर ये काम करना पड़ता है. ऐसे ही नहीं है, ये एक स्किल वाला काम है. तो आप एक स्किल वाला काम करते हुए नज़र आ रहे हो जिसमें आप बड़े डिटेल ओरिएंटेड हो. सो योर हार्ड वर्क इज़ गोना बी पेड ऑफ, सो डोंट वरी. प्रिविलेज्ड लेडी यहाँ ये शो कर रहा है कि ड्यू टू योर हार्ड वर्क यू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी विच पीपल में फील दैट यू आर प्रिविलेज्ड. मे बी आपके पेरेंट्स ने, आपके लव्ड वंस ने आपको मनी प्रोवाइड करा है, बट वो हैरान होंगे जब आप उनको ये बात कहोगे दैट आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, क्योंकि आप इतना अच्छा मनी अर्न कर लेते हो. एंड यू द वे यू ड्रेस अप योर सेल्फ, इट्स द ओल्ड मनी काइंड ऑफ वे. जो एक होता है कि आप रैग्स टू रिचेस जा रहे हो, फिर आप नेम ब्रांड क्लोथ्स खरीदते हो, ऐसे कपड़े खरीदते हो जहाँ जिन पर लिखा होता है कि हाँ ये इस ब्रांड का है. वेरेज जो ओल्ड मनी क्लोथिंग होती है या फिर स्टाइल होता है वो ऐसा ब्रांड ओरिएंटेड नहीं होता, वो क्वालिटी ओरिएंटेड होता है. तो आप अपना मनी एक ओल्ड मनी स्टाइल वे में स्पेंड करते हो और दूसरों को लगता है आप ख़ानदानी हो, खानदानी मनी आपके पास है. Whereas it does show with these cards that you are going from rags to riches. You have started from the scratch. आपने 0 से शुरू करा है और आप 100 तक पहुंच रहे हो. So एक आपके अंदर हाई मॉरल वैल्यूज़ भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप चुप रहने वालों में से हो. यू हैव दैट वॉरियर एनर्जी इन यू.
But I do see with this pile number 1 that you are rebellious kind of people. आप रिबेल करते हो अगर कोई बड़ा एंड यू हैव वेंट थ्रू सिचुएशंस जहाँ पर जो बड़े हैं आपसे, उम्र में जो लोग बड़े हैं, वो बड़े डिसरिस्पेक्टफुल वे में आपसे या दूसरों से बात करते हुए आपने उनको देखा है, और आप ये सोचते हो कि हमसे बड़े तो हैं पर इनमें समझ हमसे भी बहुत कम है. तो आप ऐसे लोगों से आपका सामना हुआ है. सो डेफिनेटली येस, एज इज़ जस्ट अ नंबर. लिटरली एज इज़ जस्ट अ नंबर. वी शुड नॉट कीप आर एल्डर्स ऑन अ पेडेस्टल कि भाई जो एल्डर्स कहते हैं वो सब सही होता है. ऐसा नहीं होता. इट्स नॉट ट्रू. एज इज़ लिटरली जस्ट अ नंबर. जो एक कई बार ऐसा भी होता है कि जो 20 ईयर ओल्ड है वो ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, वो एक ओल्ड सोल है, उसके अंदर ज़्यादा समझ है एज़ कम्पेयर टू अ 40 ईयर ओल्ड. ऐसा भी होता है. एंड यू आर वन ऑफ दोज पीपल पाइल 1 जो अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर है, अपनी एज से ज़्यादा समझदार दिखेंगे और होंगे. जैसे आजकल ये कहते हैं कि जेनजीज आर एजिंग क्विकली. सो यू कैन बी अ जेनजी पाइल नंबर 1. एंड येस, क्योंकि लाइफ का एक्सपीरियंस, ऐसे ऐसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होंगे या आपको बड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा कि एज शक्ल पर दिखना शुरू हो जाएगी कि हाँ थोड़ा एज अपनी उम्र से बड़े दिखना शुरू कर देंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी वो जल्दी आ जाएगी. सो दैट इज़ गोना हैपन टू यू. दैट इज़ गोना हैपन टू यू. सो ये आपके लिए जो है अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस हैं जो स्पिरिट आपको देना चाहती है. ऑल राइट. और अगेन एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें, एरीज, टॉरस, कैंसर साइन भी, ये कैंसर एक मदर का साइन है, नरिशमेंट का साइन है, रेस्ट स्लीप का साइन है. सो वी हैव अ मदर हेयर. सो कैंसर साइन भी, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, ये यहाँ पर साइंस प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका स्पिल करता, टॉरस में रोहिणी, मृगशिरा, कैंसर में पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा, फिर लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा स्पिल करता, स्कॉर्पियो में अनुराधा, ज्येष्ठा. तो इनमें आपके सन, मून, राइजिंग, आत्मकार का सेनेंट, सन लॉर्ड या कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. एंड यू कैन रन योर 8th house दशा राइट नाउ एज वी डिस्कस्ड अर्लियर. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know, and also write angel blessing in the comment section below. All right, and do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. And again the link to the website is in the description box below. अगर आप इन bracelets में interested हो, these are handmade, cleansed, energized by me. You can again check them out on the website itself. You can buy them for yourself or for your loved ones. अभी I'm wearing the amethyst, the malachite, clear quartz, blue jasper. So again you can check them on the website itself. And I shall see you in the next reading, pile 1. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the snake. Let's get started with your reading. तो हम इस ओशो डेक को सबसे पहले इससे कार्ड्स पुल आउट करेंगे, ओशो डेक से. Then we'll move to the tarot. Okay, we already have 2 cards. We have the card of success. Beautiful. And we have number 6. I already see पाइल नंबर 2 को आपके चार्ट में वर्गो साइन जो है इट विल बी प्रोमिनेंट. ये 6th हाउस में प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे, वर्गो साइन में प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, इनमें प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. एंड यू आर सार्कास्टिक इन नेचर. पाइल नंबर 2 बहुत सार्कास्टिक हो. यू कैन हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. आप दूसरों को बहुत हंसाते होगे. इनफैक्ट जो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टफ एक्सपीरियंसेस हुए और आपने उन टफ एक्सपीरियंस का भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. अपनी लाइफ में जो हार्डशिप्स हुई उसका भी एक जोक क्रिएट कर दिया. यानी उसको भी आपने अपने चित्त पर नहीं बिठाया, उसको भी आपने हल्के में लिया. एक लाइट वे में आप ज़िंदगी जीना पसंद करते हो. या तो हम अपने मुश्किल समय को याद कर करके तंग हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, या फिर उस मुश्किल समय का भी हम जो ऐसे उसका ऐसा जोक क्रिएट कर दे और उसको याद कर कर भी खुश हो जाए. तो आपका बड़ा एक लाइट स्वभाव, लाइट नेचर नज़र आ रहा है. और इसी लाइट नेचर की वजह से, इसी ह्यूमर की वजह से
आप दूसरों को हंसाने की पावर रखते हो। पाइल नंबर 2, इसी नेचर की वजह से यू आर सक्सीडिंग, यू आर गेटिंग द सक्सेस इन लाइफ, यू आर बीइंग विक्टोरियस, यू आर गेटिंग फेम, यू आर गेटिंग वर्ल्ड वाइड फेम। आप अगर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएट करते हो तो यू गेट द वर्ल्ड वाइड फेम। इफ़ यू आर वर्किंग इन सम कंपनी, यू आर वर्किंग इन IT सेक्टर, यू आर डूइंग अ नॉर्मल जॉब बेसिकली, और यू आर इन द मेडिकल फील्ड, व्हाटएवर, यू आर डूइंग अ नॉर्मल जॉब, तो आप अपने करियर में, आप अपने वर्क प्लेस पर फेमस हो जाते हो। आपको कोई विक्ट्री, आपको कोई सक्सेस मिलती है, जो काम दूसरे नहीं कर पाते वो काम आप कर लेते हो। तो सक्सेस यहाँ पर आपके लिए बहुत नज़र आ रही है। सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स एंड वी हैव कंट्रोल। सो विद द कंट्रोल कार्ड, आई फील दैट यू वर दैट पर्सन बिफोर। पहले आप ऐसे पर्सन थे जो बहुत कंट्रोल फ्रीक थे, जो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते थे, बट देन यू फेल कि लाइफ का अपना ही जो है ना एक तरीका है, या अपना ही लाइफ का डेस्टिनी है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कई चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। तो इट्स मच बेटर दैट आई लेट गो ऑफ दैट कंट्रोल। लेट्स सी कि लाइफ मेरे लिए क्या प्लान्स रखती है, क्या पता वो प्लान्स मेरे वाले प्लान से ज़्यादा अच्छे हों। सो येस, इट डज शो विद अ कंट्रोल कार्ड। जैसे मैं इस कंट्रोल कार्ड को यहाँ पे रखने वाली हूँ, पहले रखने वाली हूँ, सक्सेस का कार्ड बाद में। सो यही शो करता है दैट बिफोर यू वर दिस कंट्रोल फ्रीक पर्सन हु वांटेड टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग, और जब वो कंट्रोल जितना आप करते थे उस चीज़ को, उतना आपके कंट्रोल से बाहर जाती थी। एंड देन यू रियलाइज, लेट मी लेट गो ऑफ दैट कंट्रोल, लेट मी लेट गो ऑफ दैट कंट्रोल। द डेस्टिनी मे हैव मच बेटर प्लान्स देन आई हैव। और जैसे ही आप उस कंट्रोल को लेट गो करते हो, यू बिकम विक्टोरियस। एंड वी हैव द स्ट्रेस कार्ड। आई फील कि आप एक स्ट्रेस बस्टर हो। पाइल नंबर 2, आप दूसरों का स्ट्रेस बस्ट कर देते हो। आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो सकते हो, पाइल नंबर 2, और यू कैन एक्चुअली बिकम अ स्टैंड अप कॉमेडियन। आपका काम दूसरों को खुशी देना हो सकता है, कोई ऐसा आप काम कर सकते हो जो दूसरों को खुशी देता है। यू कैन बी ऑल्सो एन इवेंट मैनेजर, अ वेडिंग प्लानर, या बर्थडे वाली जगह को डेकोरेट करना, या इवेंट को डेकोरेट करना। लाइक यू कैन डू सच वर्क्स एज वेल। बट द स्ट्रेस कार्ड हियर डज शो कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में पहले आ जाते हैं जितना आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट एज सून एज यू लेट गो ऑफ दैट कंट्रोल, वो आपको स्ट्रेस होना बंद हो जाता है। वी हैव द नंबर 6, नाउ वी हैव द नंबर 7. Let's pull some cards from the tarot. Pile number 2. We have, अच्छा एक और चीज़, आई फील विद द स्ट्रेस कार्ड कि जो लोग आपके बॉसेस हैं, जो लोग आपकी अथॉरिटीज़ हैं, यू मे फील कि उनको ज़्यादा कुछ नहीं आता, वेयर यू नो मच बेटर देन देम। यू फील दैट जो मेरे बॉसेस हैं, जो मेरे प्रोफेसर्स हैं, जो अगेन मेरी अथॉरिटीज़ हैं, उनको नहीं आती चीज़ें, मेरे मुझे आती है। जो मेरी जनरेशन है, जो आपकी जनरेशन है, जो भी जिस एज ग्रुप में आप हो, पाइल नंबर 2, उस जनरेशन को ज़्यादा पता है एज कम्पेयर टू योर बॉसेस, टू योर अथॉरिटीज़। यू मे फील दिस वे एज वेल. And we have the King of Cups here. I see lot of emotional maturity. Then we have the Ace of Cups. I see lot of emotional satisfaction as well. Cups का कार्ड है, King of Cups का कार्ड है, Ace of Cups का कार्ड है. Cups की एनर्जी इमोशंस और सेटिस्फैक्शन, इनर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड होती है. तो यहाँ पर आपके लिए जो अनएक्सपेक्टेड मैसेज ये आ रहा है कि यू विल बी सेटिस्फाइड द वे योर लाइफ इज़. यू विल गेट सेटिस्फाइड द वे योर लाइफ इज़. आपको जो मिल रहा है जिंदगी में, यू आर गोना बी सेटिस्फाइड विद दैट सून. सो दैट वी आर गेटिंग. और किंग ऑफ कप्स ये शो करता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत इमोशनली मैच्योर हो एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर सराउंडिंग यू. जो आपके आसपास लोग हैं उनसे ज़्यादा आप मैच्योर इनफ हो, आप ज़्यादा अपने आप को सेटल्ड महसूस कर सकते हो.
सक्सेस आपके कार्ड्स पर है, तो अब अपने आप एंड आई ऑल्सो फील दैट यू डू कंपेयर अदर पीपल टू यू डू कंपेयर देयर लाइफ विद यू, और वो कंपैरिजन जब आप करते थे तो आपको दुख महसूस होता था, पर अब अगर आप अपने आप को कंपेयर करोगे इन फ्यूचर या अभी, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ स्टिल मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू द पीपल सराउंडिंग यू। स्पेशली सक्सेस को पाने के बाद यू रियलाइज़ कि अरे मेरी लाइफ बहुत 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 100 गुना अच्छी है, लाख गुना अच्छी है मेरे साथ वालों से। आई एम मोर प्रिविलेज्ड और माई डेस्टिनी इज़ मोर पावरफुल, क्योंकि कुछ ऐसा आपके लिए समय आ रहा है जहाँ पर आपको सक्सेस मिलती है और आप दूसरों को अपने आप से कंपेयर करते हो। शायद ऐसा हो सकता है जो प्रमोशन आपको मिलना चाहिए था या जो पोजीशन आपको मिलना चाहिए था वो आपके साथ वाले को मिल गया और आपको लगा कि मैं ज़्यादा डिजर्विंग हूँ, बट गेस व्हाट, द डेस्टिनी हैज़ डिफरेंट प्लान्स फॉर यू और आपको उससे भी बड़ा पोजीशन मिल रहा है। अब यहाँ पर भी इस कंट्रोल कार्ड में ये शो हो रहा है दैट यू आर बिकमिंग सम अथॉरिटेटिव फिगर, you are getting the seat of power, एक better seat of power, एक higher seat of power। यहाँ पर भी हम इस पर्सन को एक बॉल के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर इस पर्सन को हम ग्लोब के ऊपर देख रहे हैं, वो भी एक वाइल्ड एनिमल के ऊपर देख रहे हैं, यानी आपने अपनी वाइल्ड सिचुएशंस पर काबू पा लिया, अपने वाइल्ड नेचर पर काबू पा लिया। और यहाँ पर भी हम इस पर्सन को एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। So you are becoming authoritative, like you are getting the seat of power। आप खुद एक बॉस, एक अथॉरिटी बन रहे हो, you're becoming some professor, a senior professor, that can happen। but एक हाई पोजिशन आपको मिल रही है, ये शो रहा है। एंड येस, विद द किंग ऑफ कप्स, किंग है ना, तो किंग तो हाईएस्ट अथॉरिटी है ही, तो आपको एक पावरफुल पोजिशन मिल रही है, ये यहाँ पर शो हो रहा है। और कब मिल रही है? Within 6 weeks। इस एस्ट्रोलॉजी डेक से क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए? So we have retrograde, we have review। You can literally have Saturn retrograde pile number 2 in your chart। Saturn होता है हमारा कर्म, हमारा करियर। तो करियर में it can happen कि जब इवन एजुकेशन में भी कि भाई आपको एक क्लास रिपीट करनी पड़ गई या कोई सब्जेक्ट रिपीट करना पड़ गया। इट शोज़ कि जहाँ पर प्रमोशन होनी चाहिए थी वहाँ डिमोशन मिल गया, या प्रमोशन हुआ ही नहीं काफ़ी टाइम से। एंड ऐसा सिचुएशन हो सकता है आपकी लाइफ में पाइल नंबर 2। एंड अगेन Saturn कैन बी रेट्रोग्रेड इन योर चार्ट एंड Jupiter कैन ऑल्सो बी रेट्रोग्रेड इन योर चार्ट। मर्करी भी रेट्रोग्रेड हो सकता है आपके चार्ट में पाइल नंबर 2, बट स्पेशली Saturn retrograde will be there, क्योंकि Saturn अगेन करियर है, कर्म है। तो आपने अपनी जो कमी कमज़ोरी थी ना उस पर वर्क करा है, हेंस अब आप एक फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो लाइफ में, हेंस आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। यहाँ पर भी हमें स्टेयर्स नज़र आ रही है और स्टेयर्स ऊपर और नीचे दोनों जाती है, राइट। हम चढ़ भी सकते हैं, हम उतर भी सकते हैं, पर उतरना जितना था अब उतर चुके हैं, अब चढ़ने की बारी आ गई। यहाँ पर भी हम एक हाइट पर चढ़ के बैठे हुए हैं इन तीनों कार्ड्स में भी। और ये जो किंग ऑफ कप्स है ना, ये डेप्थ ऑफ ओशन को शो करता है। तो यू हैव गॉन डाउन बट नाउ यू आर राइजिंग, ये यहाँ पर शो हो रहा है। एंड गाइडेंस आपके लिए ये है, रिव्यू का कार्ड है। तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी रिव्यू करो, जो आपको अभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसको रिव्यू करो, बिकॉज देयर कैन बी समथिंग जो ठीक नहीं है और रिव्यू की ज़रूरत है। आपको डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट करना पड़ जाए क्योंकि आप उसे बिना अगेन रिव्यू करे दे दो। सो 10 टाइम्स चेक करो, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको किसी को सबमिट करना है तो 10 टाइम्स उस डॉक्यूमेंट को, उस पेपर वर्क को चेक करो, बिकॉज देयर कैन बी सम मिस्टेक इन दैट। ये भी आपके लिए गाइडेंस है। एंड वी हैव मार्स, इट सेज मोशन। तो मार्स जो फॉरवर्ड मोशन को शो करता है, फॉरवर्ड मूवमेंट को शो करता है, एक मोमेंटम को शो करता है। तो यहाँ पर आप अब आगे बढ़ते ही जा रहे हो, पीछे नहीं जाओगे। फॉरवर्ड मोमेंटम है, फॉरवर्ड मूव कर रहे हो। और मार्स एक शार्प ऑब्जेक्ट है, सो वी सी अ स्वॉर्ड एज वेल। आई सी दैट यू कैन हैव मार्स केतु कंजंक्शन, या केतु मार्स को एस्पेक्ट कर रहा हो आपके चार्ट में पाइल नंबर 2, ये प्लेसमेंट भी आपके लिए हो सकती है।
और ये मार्स आपका आत्मा कार का भी हो सकता है, सोल सिग्निफिकेटर भी हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट हो सकता है। आपका जो आत्मा कार का वो एरीज या स्कॉर्पियो साइन में प्लेस्ड हो, या आपका जो मून है वो एरीज या फिर स्कॉर्पियो में प्लेस्ड हो। एरीज में मून अगेन डेबिलिटेटेड है तो आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज देगा। बट ये जो मार्स मोशन का कार्ड है ये एक वॉरियर काइंड ऑफ एनर्जी है। एंड आई फील दैट यू आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू पाइल नंबर 1 एज लाइक पाइल नंबर 2। अगर आपके पास टाइम है, एनर्जी है, तो डू गो वॉच पाइल नंबर 1 एज वेल, क्योंकि उसके अंदर भी आपके लिए मैसेजेस होंगे। क्योंकि वॉरियर कार्ड आया था फ्रॉम अ डिफरेंट डेक, जो कि मार्स की तरह ही चीज़ है, मतलब मार्स वाली ही एनर्जी है वॉरियर। मार्स एक सोल्जर है, वॉरियर है। सो यहाँ पर एक फाइटिंग एबिलिटी या एक पॉजिटिविटी, एक विल पावर आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है अपने वर्क को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने एफर्ट्स को लेकर। भाई जो भी मैंने एफर्ट करना है ना, जी जान से करना है वो एफर्ट, मैंने दिल लगा के करना है। तो ऐसा आपका जो है नेचर या ऐसी एनर्जीज आपकी अभी नज़र आ रही है। एंड आई सी दैट आपको काफ़ी सारे मेल अथॉरिटीज़, मतलब मेल बॉसेस या मेल कोवर्कर्स के साथ वर्क करना पड़े, या क्वाइट मैस्कुलिन वुमेन से डील करना पड़े एट वर्क। बट यू आर गोना विन ओवर देम, दैट वी सी। यू आर गोना बिकम विक्टोरियस ओवर देम। और मार्स ये भी शो करता है कि आप एकदम से एक हाई रैंक पर नहीं जा सकते, आपको पहले लोअर रैंक्स पर वर्क करना पड़ेगा एंड देन यू गेट टू द हाई रैंक। Then we have the temple path. Okay, I see some spiritual or religious inclination. I see कि you are interested, pile number 2, in spirituality or religion. आप कोई pilgrimage travel करते हुए नज़र आ रही है। Even number 12 represents travel. तो आप कोई pilgrimage travel या spiritual travel करते हुए नज़र आ रहे हो। This is on the cards for you. Last but not the least, we have official person. So again आप एक authoritative figure खुद बनते हुए नज़र आ रहे हो, खुद ये बनते हुए नज़र आ रहे हो। as we were talking, you are becoming the authority and you may be you are also feeling कि जो लोग मेरे ऊपर authority है, मेरे bosses है, उनको मुझसे या मेरी generation से in fact कम समझ है, वो समय के साथ नहीं चल पाए। और आप अब सिस्टम को बहुत अच्छे से चला सकते हो अगर आपके हाथ में वो अथॉरिटी आ जाए तो। और आपके हाथ में वो अथॉरिटी आती हुई नज़र आ रही है, आप उस अथॉरिटेटिव सीट पर बैठते हुए नज़र आ रहे हो। Then we have imprisonment. So with this imprisonment card, it does show कि आपने अपने आप को लिमिटेशंस में बांधा हुआ है, आपने अपने आप को लिमिट करा हुआ है। कैसे लिमिट करा हुआ है? आपने अपने आप की जो प्लान्स बनाए आप उस पर फोकस करना चाहते हो, बट जैसे आप वो कंट्रोल को लेट गो करते हो, भाई मेरे प्लान्स अगर नहीं भी वर्कआउट करते, ओके लेट्स सी वेयर माई लाइफ टेक्स मी। जब आपके अंदर ये नेचुरली ये थॉट क्रिएट होता है कि लेट्स सी कि मेरे को कहाँ मेरी डेस्टिनी लेकर जाना चाहती है, जब ऐसे छोड़ देते हो ना अपनी डेस्टिनी पर, ऐसे सरेंडर कर देते हो ना उस डिवाइन एनर्जी पर, देन यू विल नोटिस दैट यू गेट दैट, देन यू गेट सक्सेस इन लाइफ, देन यू गेट दैट अथॉरिटेटिव, देन यू गेट द सीट ऑफ authority, you become the authoritative figure. पर आपको उस लिमिटेशन को जो है लेट गो करना पड़ेगा, जो आपने अपने ऊपर लगाई हुई है कि भाई मैं तो ऐसा ही कर सकता हूँ, या मेरे अंदर तो इतनी ही पावर है, मैं तो एंड आई कैन डू दिस मच ओनली। नहीं, आपके अंदर बहुत कैपेसिटी है पाइल नंबर 2, आप बहुत घंटों तक भी काम करने की कैपेसिटी रखते हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो हम कह सकते हैं इतना स्टैमिना है। अगेन मार्स जो है स्टैमिना को ही रिप्रेजेंट करता है। यू हैव द स्टैमिना टू वर्क, टू प्रोग्रेस इन लाइफ। वो अलग बात है कि आपको मौका नहीं मिला, पर अब वो मौका आपको ज़रूर मिलेगा, बट यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट कंट्रोल ओवर योर लाइफ, यू हैव टू सरेंडर। ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड ऑफ द डेक में वी हैव द मेन मेल जो है अगेन वी सी 1 नंबर, जो 1 नंबर है इट इज़ रूल्ड बाय मार्स ओनली। और मार्स एरीज साइन जो कि फर्स्ट जोडिएक साइन है उसको भी रूल करता है। सो एरीज में आपके प्लैनेट ज़रूर प्लेस हो सकता है। फिर 10th हाउस में आपका एरीज साइन हो इन योर बर्थ चार्ट, वो यहाँ शो हो रहा है।
जो कि अगेन यही शो करता है दैट यू गेट फेम इन योर करियर, यू गेट अ हाई रेपुटेशन इन सोसाइटी, आपको सोसाइटी में एक हाई रैंक मिलता है. मेन मेल ये भी शो करता है दैट यू कैन बी अ टॉम बॉय. इफ़ यू आर अ गर्ल, पाइल नंबर 2, देन ग्रोइंग अप यू वर अ टॉम बॉय. एंड इट शोज़ कि आप पीपल प्लीजिंग में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हो, और आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, और आप कुछ कर दिखाना चाहते हो, अपने परिवार को रिस्पेक्ट रिगार्ड देना चाहते हो, दिलवाना चाहते हो सोसाइटी में. ये शो हो रहा है यहाँ पर मेन मेल के साथ. एंड यू आर द मेन लीड, यू आर द प्रोटैगनिस्ट, यू आर द मेन कैरेक्टर. बाकी सारे आपकी ज़िंदगी में हैं, वो आपकी ज़िंदगी में जी रहे हैं, बट आप मेन कैरेक्टर हो. यू हैव द मेन कैरेक्टर वाइब. पाइल नंबर 2, you are living your life and everyone is living in your life, but you are the protagonist. So ये आपके लिए जो है मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 2. These were the unexpected messages for you. And yes, astrologically अगर हम देखें तो yes, sign of Aries, sign of Leo, sign of Cancer as well, sign of Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. ये आपके इन साइंस में प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी, भरिणी, कृतिका. कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु, पुष्य, श्लेषा. लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. और सेजिटेरियस में वी हैव मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा. उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है केप्रिकॉर्न में. श्रावण, धनिष्ठा. धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में. एंड शतभिषाख, पूर्व भद्रपदा नक्षत्र. तो इन नक्षत्रस में प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. इनफैक्ट पुष्य एंड the nakshatra of Magha also seems to be prominent in your chart. Pushya and Magha, क्योंकि Pushya emperor वाला नक्षत्र है, Magha kingly नक्षत्र है. If Pushya is the emperor, Magha is the king. It's the kingmaker. और जो माघा का जो नक्षत्र एनिमल है, पूर्व फल्गुनी का जो नक्षत्र एनिमल है, इट्स द रैट. विच शोज़ कि एक माघा इंडिविजुअल और एक पूर्व फल्गुनी इंडिविजुअल का सेक्शुअल एपेटाइट बहुत बड़ा होगा. Such people can also can become porn star if they have the placements for that. So ये यहाँ पर आपके चार्ट में ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी. D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट में ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी. प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे इन साइंस एंड नक्षत्रास में. So yeah, that was it. This was the reading. And yeah, one more thing, you are also the people जो कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट अपनी लाइफ में ज़रूर सीखेंगे. जैसे श्रावण और धनिष्ठा नक्षत्र आपके चार्ट में अगेन प्रोमिनेंट होगा. आपका आत्मा कारका, सन मून राइजिंग धनिष्ठा या श्रावण में प्लेस्ड होगा, क्योंकि ये धनिष्ठा और श्रावण नक्षत्र म्यूज़िक रिलेटेड नक्षत्र है, सिंगिंग रिलेटेड नक्षत्र है, स्पोक्स पर्सन वाले नक्षत्र है. और आप एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर भी होगे जहाँ पर लोग आपको देखेंगे, सुनेंगे और आपको एडमायर करेंगे. दैट वी सी. So Saravan or Dhanishta is also quite prominent in your chart. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now I'm wearing the amethyst and the C set, which consists of malachite, clear quartz and blue jasper. So you can check them out. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the fish. Let's get started with your reading. तो हम सबसे पहले Osho deck use करेंगे and then we'll move to the main tarot. So क्या messages है Osho deck से आपके लिए? क्या unexpected messages हैं? ऐसे messages जो आपको unexpected लगे. But the spirit wants to tell you these things. I feel this card wants to come out. Okay, we have postponement. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो postpone होंगी. Pile number 3.
these two cards. Okay. We have understanding. We have the Fool, जो कि फर्स्ट कार्ड होता है टेरो में. Okay. जो भी होता है पाइल नंबर 3 वो अच्छे के लिए होता है, तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखना. एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन डिवाइन टाइम. कई बार जो हम समय सोचते हैं ना कि इस समय ये चीज़ हो जाए, वो होती नहीं है, क्योंकि एक इससे बेटर टाइम पीरियड आ रहा होता है जिस समय पर जब वो चीज़ होगी तो बहुत वैल्यूएबल, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगी. यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग कार्ड में भी हम एक पॉज देख रहे हैं ना, जैसे ये इनफैक्ट यूट्यूब का भी साइन है. और जैसे हम वीडियो को ऐसे पॉज करते हैं, है ना, और हमें फिर से उसको प्ले करना होता है, तो ये बटन दिखता है, मतलब ये प्ले का बटन दिखता है. So literally it shows that if you are a YouTuber, I feel that many of you guys are in content creation, then you can get a play button. That can happen. But हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ों का पॉज ज़रूर है, कुछ चीज़ों का पॉज ज़रूर नज़र आ रहा है, उसका पोस्टपोन हो रही है कुछ चीज़ें. एंड दैट इज़ फॉर योर बेटरमेंट. ऑल राइट, पाइल नंबर 3, कुछ चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं. और द फूल शोज़ की कई नई चीज़ें शुरू हो रही है, कई इनफैक्ट अनएक्सपेक्टेड नई चीज़ें शुरू हो रही है. एंड यू शुड बी अ बिट मोर ओपन माइंडेड टू दैट. मतलब थोड़ा अपना ब्रॉड माइंडेड हो, और जो नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है उसको एक्सेप्ट करो. ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है. आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हो, और जितना आप खुशी से उन नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो उतना आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलती है. पर अगर आप मन उदास करके, मुंह चिढ़ा के उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हो, तो ना उस चीज़ का मज़ा आएगा और ना उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी. तो कई नई चीज़ें, कई नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, और कुछ जो है चीज़ें पोस्टपोन हो रही है. और आप यहाँ विद दिस अंडरस्टैंडिंग कार्ड इट डज शो कि आपका एक अंडरस्टैंडिंग नेचर है. आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाओगे कि हर चीज़ का अपना एक डिवाइन टाइम होता है. So it does show that you are open-minded, you are broad-minded, you are accepting change. और आप ऐसे इंसान हो सकते हैं पाइल नंबर 3 जो कहे कि जैसा मैं सोचती हूँ ना वैसा कभी नहीं होता. जिस समय पे मैं वो चीज़ चाहती हूँ ना उस समय पर मेरे को मिलती नहीं है. अगर मेरे को कोई चीज़ चाहिए तो मेरे को उसके लिए 10 चक्कर काटने पड़ेंगे, 10 बार उस काम को करना पड़ेगा, तब जाके वो काम मेरा जो है कंप्लीट होगा. हालांकि मैं लेज़ी नहीं हूँ, पर मेरे को 10 बार चक्कर काटना पड़ता है, 10 बार उस काम के लिए जाना पड़ता है, और तब जाके वो मुझे चीज़ मिलती है. तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की मेरे को एक्साइटमेंट कम हो जाती है. यू कैन बी वन ऑफ दोज पीपल हु से दीज थिंग्स. बट गेस व्हाट, अगर आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं तो ऐसा होगा. आपके चार्ट में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो सकता है, आपके चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड हो सकता है, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो सकता है. स्पेशली सैटर्न कैन बी रेट्रोग्रेड इन योर चार्ट, क्योंकि सैटर्न हमारा कर्म है, सैटर्न हमारा करियर है. रेट्रोग्रेड होता है कि बैकवर्ड मूवमेंट, नॉट लिटरल बैकवर्ड मूवमेंट, बट शो करता है बार बार एक इंसान को अपने करियर के बारे में काम करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि पहली बार में वो चीज़ ठीक से नहीं हुई, इस वजह से बार बार करना पड़ेगा वो काम. डिज़ायर्ड रिजल्ट पहली बार में नहीं मिला. अगेन पुनर्वासु नक्षत्र कैन बी प्रोमिनेंट इन योर चार्ट, यानी जो आपके कुछ सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या कुछ प्लैनेट्स जो हैं आपके चार्ट में वो जेमिनी या फिर कैंसर साइन में प्लेस जो, स्पेशली पुनर्वासु नक्षत्र में प्लेस जो. पुनर्वासु जेमिनी साइन में होता है और कैंसर में स्पिल करता है. सो आप आपके लिए 1 स्टेप सक्सेस तो डेफिनेटली नहीं है. आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे किसी चीज़ को पाने के लिए. अगर आपको एग्ज़ाम देने जाते हो तो तीसरे चौथे अटैम्प्ट में या 5वें अटैम्प्ट में आपको वो चीज़ हासिल होती है, वो जीत हासिल होती है. यू कैन बी दोज पीपल हु हैव टू अगेन पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स टू गेट समथिंग. पर वो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, तो यू आर क्वाइट एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन, और वेरी हम्बल्ड इंडिविजुअल, प्रैक्टिकल इंडिविजुअल, एंड स्टिल होपफुल इन नेचर. तो इस गुड नेचर का आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा. पाइल नंबर 3, हमारा हार्डवर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता है. आपका हार्डवर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा. कर्मा ऑलवेज कम्स बैक, गुड और बैड. योर हार्डवर्क, योर रिजल्ट ऑफ योर हार्डवर्क विल कम बैक.
वी हैव द जस्टिस कार्ड. जस्टिस ज़रूर 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 सर्व होगा पाइल नंबर 3. अगर डीलेज हैं तो कोई वैल्यूएबल चीज़ आपके हाथ ज़रूर लगेगी. चाहे कई चीज़ें पोस्टपोन हो जाए, पर कई अच्छी चीज़ें आपके हाथ ज़रूर लगेगी जो आपको ऐसा फील कराएगी अच्छा हो वो चीज़ पोस्टपोन होगी, अदरवाइज़ मेरे को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, मैं इसको ग्रैब ही नहीं कर पाती. So justice is going to be served. So don't you worry. Everything is going to turn out just fine. All right. Then we have temperance card. It says let go of self-imposed limitations. अपने आप को लिमिट मत करो. यू आर अ लिमिटलेस बीइंग. जो फूल कार्ड है ना वो भी लिमिटलेस है. इट्स लिमिटलेस. इट शोज़ के जैसे फूल कार्ड में है कि एक रास्ते पर चल रहे थे, वो रास्ता इतना अच्छा नहीं था पर हम उस पर चल रहे थे. ये हमारा प्लान था कि हमें इस रास्ते पर ही चलना है और आगे बढ़ना है. बट गेस व्हाट, लाइफ का कुछ और प्लान है और लाइफ आपको एक नए रास्ते पर लेकर जाए जो इनफैक्ट कंफर्टेबल हो. आज की डेट में हमें प्रैक्टिकल रियलिटी अगर हम देखें तो चाहे डेस्टिनेशन बहुत सुंदर हो पर जर्नी अच्छी ना हो ना, मज़ा नहीं आता है. बिल्कुल मज़ा नहीं आता है. सो विद द फूल कार्ड हेयर, जो आपने अपनी डेस्टिनेशन बनाई हुई है ना, जो आपका गोल है वो बहुत बढ़िया गोल हो सकता है पाइल 3, बहुत बढ़िया गोल. पर उस तक पहुंचने की जो जर्नी है ना वो बहुत बढ़िया नहीं है. वो इनफैक्ट टफ है, मुश्किलों से भरी हुई है, क्रिटिसिज्म से भरी हुई है, कंपटीशन से भरी हुई है. डेस्टिनी हैज़ अ डिफरेंट प्लान फॉर यू. डेस्टिनी चाहती है कि आप एक अच्छी डेस्टिनेशन तक पहुंचो पर सुंदर रास्ते के साथ, कंफर्टेबल रास्ते के साथ. सो देयर आर गोना बी सर्टन थिंग्स जो आपका जिस टफ रास्ते पर आप चल रहे हो ना वो पोस्टपोन होता हुआ नज़र आ रहा है. आप उस टफ रास्ते पर चलते हुए नहीं नज़र आ रहे हो. आपको डेस्टिनी एक ईजी रास्ता दे रही है. इट्स नॉट रियली अ शॉर्टकट बट इट्स नॉट ऑल्सो लॉन्ग कट. एक ईजी रास्ता आपको दे रही है जिसमें एक अच्छी जर्नी आपकी नज़र आ रही है और एक सुंदर डेस्टिनेशन पर आप पहुंच रहे हो. यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर वी सी अ प्रिजन एंड अदर बीइंग्स आर फ्लाइंग और आप इस प्रिजन में हो. और यहाँ पर भी ये लेट गो ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन. ये प्रिजन आपका लिमिटेशंस है कि भाई मैं ऐसे ही कर सकती हूँ, मैं इतना ही कर सकती हूँ, मुझे तो इतनी समझ है, मैं तो सिर्फ यही कर सकती हूँ और मैं नहीं कर सकती. ये जो लिमिटेशंस है ना, इसको आपने लेट गो करना है. ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है विद द टेम्परेंस कार्ड. लेट गो ऑफ योर लिमिटेशंस एंड बी अ लिटिल मोर ब्रॉड माइंडेड. आपके पास लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जो कभी आपने सोचा नहीं था कि ये काम भी मैं करूँगी. Like I never knew that I'm gonna, like when I was like 8, 9, 10, I never knew that I'm gonna become an astrologer or a tarot card reader. I never knew that. I mean, उस टाइम तो क्या ही समझ होती है. उस टाइम तो लगता था डॉक्टर, इंजीनियर या फिर लॉयर यही होता है, या एस्ट्रोनॉट यही होता है करियर. So later, we realized कि there is something else. तो उसी तरह जब आप अभी अपने एक इस समय पर हो पाइल नंबर 3 जहाँ पर आप सोचते हो कि बस मेरे पास यही चीज़ें है जो मेरे को अचीव करनी है, या तो डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर, मतलब ये 3-4 ही चीज़ें हैं मेरे पास, इनमें से ही मेरे को कुछ पिक करना है, इनमें से ही कुछ होना है, दैट्स इट. बट द लाइफ हैव डिफरेंट प्लान्स. द लाइफ डेफिनेटली हैव डिफरेंट प्लान्स फॉर यू. तो जो लाइफ के प्लान्स है उसको एक्सेप्ट करो. ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है आपके लिए. और जो लिमिटेशन है कि भाई मैं तो यही करना है, मेरे को तो यही करना है, मेरे को वो नहीं करना, यही अच्छा लगता है मेरे को, नो, ट्राई डिफरेंट थिंग्स आउट. बिकॉज उसके बाद ही आपको रियलाइज़ होता है कि जब आप वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट करते हो, देन यू रियलाइज़ कि अरे वो चीज़ तो ज़्यादा बढ़िया है, वो चीज़ तो ज़्यादा ईजी है, वो चीज़ तो ज़्यादा अच्छी है, उसमें मैं अच्छा कर पा रही हूँ. आपने अपने आप को मौका ही नहीं दिया, आपने अपने आप के लिए रूम ही नहीं छोड़ा कि आप नई चीज़ ट्राई करो. आप उसी ओल्ड चीज़ में लगे हो एंड फाइनली वही ओल्ड चीज़ कह रही है अब तो ये पोस्टपोन हो रहा है, कुछ समय बाद इसको कंटिन्यू करना. आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, नई चीज़ों को डिस्कवर आप कर रहे हो, अपने आप की अगेन सेल्फ डिस्कवरीज आप कर रहे हो कि भाई मैं किन चीज़ों में अच्छी हूँ. लाइक यू आर गेटिंग टू नो दैट नाउ. यू आर गेटिंग टू नो योर ट्रू एबिलिटी, योर ट्रू पैशन, योर ट्रू करियर. नाउ यू आर गेटिंग टू नो.
within 4 weeks you're getting to know that thing. Something more for pile number 3. We have find balance. जो ये टेम्परेंस कार्ड है ना, ये भी बैलेंस को शो करता है. It says find the balance between your work, rest and play time and you will have more energy, harmony, productivity in your life. Take a power nap. So take things easy. Pile number 3. Yes, आप बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हो, हार्ड वर्क आप बहुत करते हो, you are that person. But it's a time to relax, it's a time to calm down. चीज़ें पोस्टपोन हो रही है और आपके माइंड को रिलैक्स करेगा. ये जो पोस्टपोन हो जाएगी ना चीज़ें, थोड़ा आगे चल के आपको चीज़ करनी है, तो इन बिटवीन आप थोड़ा रेस्ट कर पाओगे और इन बिटवीन आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे. वी हैव स्ट्रैटेजी कार्ड, वी हैव जर्नल, journal log, it says it's a journal log. Okay, whatever, but it's a strategy card here for you. We see moon, we see a star, we see a proper symbol here. यहाँ पर coins भी है, यहाँ पर आपका क्या होता है ये, your compass, maps, key एक लॉक में लगी हुई है और वो लॉक खुल रहा है. सो इट शोज दैट यू आर ओपनिंग समथिंग, यू आर ओपनिंग अ न्यू डोर फॉर योर सेल्फ. एंड जो आपने अपने लिए लिखा था या आप जैसा चाहते थे, जो आप लाइक यू कैन बी समवन पाइल नंबर 3 जो कहे कि मैं खुद अपनी डेस्टिनी लिखता हूँ या लिखती हूँ आप, बट गेस व्हाट, डेस्टिनी जो है कहती है कि नो, आई एम सम डिफरेंट पावर दैन यू. आपकी जो पास्ट लाइफ कर्मज है उसके बेसिस पर मैं आपको रिजल्ट देती हूँ. मैं डेस्टिनी हूँ और डेस्टिनी मैं ये चाहती हूँ कि आप इस रास्ते पर ना चल के उस रास्ते पर चलो, क्योंकि वो रास्ता, उस रास्ते पर चलने के लायक हो आप. सो हियर विद द कंपस एंड द की, अ न्यू डोर इज ओपनिंग अप फॉर यू. एक नई डायरेक्शन में आप जाते हुए नज़र आ रहे हो और डेस्टिनी का प्लान कुछ और है आपके लिए, और वो बहुत अगेन मच बेटर प्लान है आपके प्लान से. तो एक हायर पावर का प्लान आपके प्लान से बहुत अच्छा है. देन वी हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स. तो ये जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स से आप डील करते हो वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे. जो डेस्टिनी जिस रास्ते पर आपको लेकर जाएगी उस रास्ते पर वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ख़त्म हो जाएंगे. एंड द गाइडेंस फॉर यू इज़ गो विद द फ्लो. अपने साथ ज़बरदस्ती मत करो, अपने साथ ज़बरदस्ती मत करो. आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नई चीज़ें आएंगी, नए सिचुएशंस आएगी जहाँ पर आपको उन नई सिचुएशंस को ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर उन चीज़ों को ट्राई आउट करना चाहिए, क्योंकि आपको तब रियलाइज़ होता है कि अरे मैं इन चीज़ों में तो बहुत 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 अच्छी हूँ, 100 गुना अच्छी हूँ, या 100 गुना अच्छा हूँ इन चीज़ों में. अपनी करंट चीज़ पे जब मैं फोकस कर रहा हूँ तो इतना अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही हूँ. लाइक इट पर्सनली फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ऐसी कितनी चीज़ें थी जिनमें मैं बहुत बुरी थी. लाइक आई वॉज बैड एट मैथ, I was bad at science. I didn't like it at all. I was bad in English grammar. मतलब मैं हर चीज़ में, इनफैक्ट एजुकेशन में, एकेडमिक्स में बुरी थी. हाँ, वो तो किस्मत का थोड़ा साथ हो गया, एक टीचर अच्छा मिल गया 11th-12th में कि ऐसा सेकंड आई मैं अपने क्लास में, अपने स्ट्रीम में. 11th में और 12th में फर्स्ट आई, बट इट्स बिकॉज ऑफ दैट टीचर. गुरु अच्छा मिल जाए, टीचर अच्छा मिल जाए तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट सक्सीड करता है. पर लाइक आई वाज ऑलमोस्ट बैड एट एवरीथिंग. बट व्हेन आई स्टार्टेड टू लर्न एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो, आई फेल्ट कि ये तो मैं कर सकती हूँ. ये तो इनफैक्ट मैंने जैसे पहले करा हुआ, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं इन चीज़ों को पहली बार कर रही हूँ या सीख रही हूँ. इट नेवर फेल्ट दैट वे. तो उसी तरह जिस चीज़ में आपको ज़ोर नहीं लगेगा और वो चीज़ ऑटोमेटिक आएगी आपको, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी, वो चीज़ आपको खुशी देगी, वो चीज़ आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ख़त्म करेगी.
So do not be afraid of trying new things out. Do not be afraid of trying unorthodox things out in life, because वो चीज़ें ही आपको लाइफ में कुछ बना कर जाएंगी, फाइनेंशियली भी और अगेन करियर वाइज, और इमोशनल सेंस भी, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा वो. And we have the flow card. What we saying? We were saying go with the flow. जैसा हो रहा है ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो रहा है, उस फ्लो के साथ चलो. Then we have cleanse. We have blue card. Beautiful. So cleanse का ये कार्ड है, तो cleansing का ये टाइम है. So cleanse का टाइम है, यानी you have to clean your old ways. all right, आपको उन ways को let go करना है, उस old way of thinking को let go करना है, समय के साथ बदलना है. और cleanse का कार्ड ये शो कर रहा है, it's a time to be your new version, a better version. और अपने मन को थोड़ा क्लियर करो. जैसे गुरु भी यही कहता है ना कि बहुत बढ़िया कोई गुरु है, और वो भी यही कहेगा कि जब तक तुम अपने दिमाग में जो तुमने कचरा भरा हुआ है उसको जब तक क्लीन करके नहीं आते, उसको निकाल के नहीं आते, तब तक मैं तुम्हारे अंदर बढ़िया चीज़ डाल ही नहीं सकता. और अगर बढ़िया चीज़ डाल दी तो तुम हजम नहीं कर पाओगे, और वो हौच पौच हो जाएगा. अगर काला पानी है, उसके अंदर साफ़ पानी भी डाल दो तो वो भी काला ही दिखेगा. उसी तरह किसी का पेट ख़राब है और उसको हलवा पूरी दे दो, बढ़िया बढ़िया खाने को दे दो, वो तो उल्टी कर देगा, उसको तो डाइजेस्ट नहीं होगा. तो उसी तरह आपको थोड़ा अपना माइंड क्लियर करने की ज़रूरत है. अगेन ये पोस्टपोनमेंट का जो कार्ड है ना, ये शो करता है कि आपके पास समय होगा अपने आप के माइंड को, अपने आप के नेचर को क्लीन करने का, फिर से रिफ़्रेश करने का आपके पास वो समय होगा. अभी दिमाग पूरा भरा पड़ा है आपका पाइल नंबर 3 ऑर्थोडॉक्स वेज, ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ से, पर जल्दी ये क्लीन होने वाला है, ये भी यहाँ शो रहा है. विदिन वी कैन से 4 weeks फ्रॉम नाउ ये चीज़ें होगी. ऑल राइट, सो दैट वाज इट. और आई शुड से विदिन 4 weeks और within 4 days this process starts of cleansing. So yeah, this is what we are getting for you, pile number 3. yeah, so astrology के लिए अगर हम देखें तो sign of Gemini, Cancer, the sign of Pisces, Virgo, and even sign of Aquarius seems to be prominent. तो जेमिनाई में मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु स्पिल करता है. कैंसर में पुष्य, अश्लेषा, फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. एक्वेरियस में धनिष्ठा, शतभिषाक, पूर्व भद्रपदा, फिर पाइसिस में पूर्व भद्रपदा स्पिल करता है, एंड उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती ये नक्षत्र है. तो इनमें आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या कोई और प्लैनेट ज़रूर 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 प्लेस्ड होगा इन द बर्थ चार्ट या D9 या D12 चार्ट में. सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ यू रेजोनेट विद दिस रीडिंग. एंड वन मोर थिंग, जैसे दिस गर्ल इज़ वेयरिंग ए स्टार काइंड ऑफ पेंडेंट. यहाँ पर भी वही सेम स्टार नज़र आ रहा है. यूजुअली स्टार हम थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं, पर यहाँ पर लाइक it's a different, definitely a different kind of star, और वही different kind of star यहाँ पर है. this shows कि सच में अभी लाइफ की जो डायरेक्शन है ना वो बदल रही है. And I also see pile number 3, you guys are also interested in music instrument. You may have some music instrument at your home, at your place. You will learn some music instrument in life. You guys are technical minded people, at the same time quite creative in nature. आपका favorite color blue हो सकता है. Literally your favorite color is blue. Aqua green, aqua blue, ऐसा color. इस type के color, इस type के colors. So yeah, that was it. This was the reading. And even Libra sign, because scales जो हैं वो Libra का symbolism है, तो Libra में भी planets place हो सकते हैं. 7000 planets place हो सकते हैं. तो Libra में भी आप चित्रा, स्वाति, विशाखा, इसमें आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड हो.
So yeah, was it. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself, and you can buy them for again yourself or for your loved ones. I'm wearing the amethyst and the C set, which consists of malachite, clear quartz, and blue jasper, so you can check them out. And yes, I shall see you in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.